राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़ ही चल रहे हैं। मैं डेंगू से शुरू कर रही हूँ आज। डेंगू, ठीक है। डेंगू क्या है? डेंगू इज़ द कॉमन डिजीज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। करेंटली इट इज़ एंडेमिक इन द बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। सबको पता है ये एक एंडेमिक हो गया है। क्यों? क्योंकि डेंगू से बहुत सारी मौत होती है, स्पेशली इन द जब दिवाली आने वाली होती है तब, ठीक है। सबको पता है इट कैन अकर एपिडेमिकली और एंडेमिकली। एजेंट है डेंगू वायरस होता है, फ्लावी वायरस 4 सेरोटाइप 1 2 3 4, ठीक है। रिजर्वायर है ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटोज होते हैं। एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 day बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ 5 day ऑफ इलनेस। होस्ट फैक्टर है ह्यूमन लाइक मलेरिया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर है लाइक मलेरिया। वेक्टर है मॉस्क्यूटो। एडीज होता है। एजाइटेना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वेक्टर ट्रांसमिशन। इंक्यूबेशन पीरियड है कॉमनली 5 to 6 days होता है। द इन्फेक्शन में भी asymptomatic or with the clinical feature. Symptomatic dengue fever is of 2 types: the clinical dengue fever and dengue hemorrhagic fever. Classical dengue fever, break bone fever. The onset is sudden with the chills and high fever, intense headache, muscle and joint pain which prevent all the movement within the 24 hours. Retroorbital pain, particularly on the eye movement, eye pressure. और क्या है? मूवमेंट विद इन 24 आवर्स, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, पर्टिकुलरली ऑन द आई मूवमेंट और आई प्रेशर एंड द फोटोफोबिक डेवलपमेंट। अदर कॉमन सिम्टम्स आर एक्सट्रीम वीकनेस, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, कॉलकुली पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, jerking pain in angular region, sore throat and general depression. Fever is usually between 39 to 40 degrees Celsius. Fever show a diaphasic curve with remission of the few hour to 2 days. The skin eruption on face, neck and chest appear in 80% of the cases during the remission of the during second febrile phase, which lasts for 1 to 2 days. Fever lasts for about 5 days after, rarely 7 days, after which recovery is usual completely vaccinated, rarely in the extremely low. Dengue hemorrhagic fever, DHF, is a severe form of dengue fever caused by more than one dengue virus. The illness begins suddenly with the high fever accompanied by the facial flushing and headache, anorexia, vomiting, epidemic discomfort, tenderness at the right coastal margin, and the generalized abdominal pain is common. During the first few days the illness usually resembles classical DF, but लेटर इट शो द सम स्पेसिफिक करेक्टर। क्लिनिकल फीचर कितने हैं? 4 तरीके के बताए गए। फीवर ऑफ एक्यूट ऑनसेट, हाई ग्रेड, कंटिन्यूस एंड लास्टिंग फॉर 2 to 7 days, ठीक है। पॉजिटिव टॉर्नेट टेस्ट होता है मोर देन 20 पैचमेट पर 25, इसमें 2.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 25 नहीं है, ठीक है। पेटिक्शिया, पुरपुरा, इक्यामायोसिस, एपिटेक्सिस, गम ब्लीडिंग, हेमेटाइसिस और मेलेना में भी प्रेजेंट। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लेबोरेटरी डायग्नोसिस होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर shock along with the above fever is called dengue shock fever syndrome. It shows rapid and weak pulse with the narrowing of the pulse pressure greater than 20 mmHg, or hypertension, restlessness, cold and clammy skin, etc. The control and the pressure like malaria symptoms and the supportive treatment example है use of antipyretic sponges for the fever, bed resting during acute febrile phase, oral fluid electrolyte therapy for the patient with excessive sweating, vomiting and diarrhea. IV infusion of the electrolyte fluid is in expensive dehydration. IV infusion of plasma expended in the condition of shock. Infusion of platelets in the condition of severe thrombopenia, ठीक है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ये भी देखने के लिए मिलता है कौन से फीवर में? विंटर जब आने वाले होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, अर्बन डिजीज रिजेंबल डेंगू सीन मेनली इन द अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड द फिलीपींस. द वायरस में बी आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट एंड मॉस्किटोज ड्यूरिंग एन epidemic in Tanzania in 1952 to 53. In India, epidemic has occurred in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh during March 2006 to August 2006. The chikungunya virus, buggy creek virus, एजेंट है इसका RNA वायरस इज अ ग्रुप ऑफ आर्बो वायरस, ठीक है। रिजर्वायर ओनली ह्यूमन केसेस होते हैं। ट्रांसमिशन है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, वही एनाफिलीज, ठीक है, या एड्स मॉस्किटो ऑफ एड्स, क्यूक्लेस मैनोसीमिया जीनस मेनली बाय एड्स, बाइट ड्यूरिंग 6 AM to 9 AM and 3 PM to
6 PM, ठीक है। कॉमन होता है। एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 12 दिनों तक। इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 2 हफ्तों तक। सडन ऑनसेट होता है चिल्स का, फीवर बहुत तेज़ होगा, 103 से 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होगा। हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, सीवर मस्कुलर एंड जॉइंट पेन होगा, सिग्निफिकेंट मलेशिया एंड पॉली आर्थराइटिस होगा। जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी बिकम swollen and painful to the person become disabled. Fever is followed by muscular rashes and other buccal and platal and thalassemia. Hemorrhage is rare. Mortality is rare. It is self-limited virus disease. Few recover within 5 to 7 days. Next is some will have persistent myalgia for the weeks to months. Children may disable neurological symptoms. Immunity is long lasting. The name chikungunya comes from the Swahili meaning that which bend up, referring on the stopping posture that victims adopt to the relieve the joint pain of the disease. Management क्या, no specific treatment is required. Symptomatically treatment analysis दे सकते हैं, antihistamine, antipyretics and bed rest is given. The prevention and control में क्या है, done mainly by the mosquito control and health education of the people. मलेरिया, नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। 90% ऑफ केसेस ऑफ वर्ल्ड अकरिंग इन द सब सहारन अफ्रीकन एंड मोस्टली कंट्री बाय पी फेलिकरिन इंडिया। इट इज प्रेवलेंटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय। एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरा है, मलेरिया है एंड ओवेल है। इन इंडिया 70% केसेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, 25 to 30% ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरा एंड 4 to 8% आर मिक्सड दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, इज रेयर। वाइल प्लाज्मोडियम ओवेल इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉट इन इंडिया। द मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ अंडरगो 2 cycles of development, that is the human cycle and the development, that is the human cycle and the mosquito cycle. The man is immediate host and the mosquito is the definite host. The reservoir only human has chimpanzees in tropical Africa may carry the infection with plasmodium malaria, which is exponentially animal reservoir as long as period of communicability क्या है, as long as the mature viable gametophyte exist in the circulatory blood. host क्या है, एज को किसी भी एज ग्रुप को करता है। सेक्स मोर चांसेस इन मेल बिकॉज ऑफ लीडिंग ऑफ आउटडोर लाइफ, मतलब ज़्यादातर बाहर रहते हैं इस वजह से होता है, पर आजकल ऐसा नहीं है, दोनों में हो सकता है, किसी मैन और वुमेन दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो बाहर ज़्यादा रहता है उससे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैरी इस इंडिविजुअल विद AS यानी कि hemoglobin sickle cell trait has a milder illness with the falciparum infection compared to the normal hemoglobin. AA pregnancy increases the risk of malaria. Socioeconomic status, high occurrence in the poor people housing. Third, ventilated and ill lighted houses provide ideal place for mosquito and therefore more chances of malaria. अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी दे रखा है इसमें। इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमन एक्वायर्स इम्यूनिटी फॉर सेवरल रिपीटेड एक्सपोजर। एग्जाम्पल है जैसे कि पीपल लिविंग इन द एंडेमिक एरिया, इन्फेंट्स रिपीटेड एक्सपोजर्स। एग्जाम्पल है जो इसका, पीपल लिविंग इन एंडेमिक एरिया, इन्फेंट बॉर्न ऑफ इम्यून मदर और प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 months ऑफ मैटरनल IgG एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है इसमें, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सीजन आता है, तो मैंने बताया ना दिवाली के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। डेंगू, मलेरिया ये दिवाली के टाइम पे ज़्यादा होता है, तो कौन सा हो गया, जुलाई टू नवंबर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जुलाई टू नवंबर क्या हो गया आपका, एंडेमिक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया सीजन का, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया पैरासाइटिस 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी क्या है, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नेसेसरी फॉर द मॉस्किटो टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन। रेनफॉल क्या है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द मॉस्किटो ब्रीडिंग। एल्टीट्यूड, एनोफिलीज आर नॉट फाउंड अबव 20,000 to 25,000 मीटर, मतलब जो मच्छर पहाड़ों पे होते हैं वो इससे ज़्यादा मीटर पे होते हैं, वो मलेरिया वाले नहीं होते हैं। रेनफॉल क्या है, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द मॉस्किटो ब्रीडिंग। कॉमन सी बात है, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी, ठीक है। अगर मैन मेड मलेरिया की बात करें तो बरो पेट्स, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। गार्डन पेट्स या फिर
गार्डन पूल्स या फिर इरिगेशन की वजह से चैनल्स एक्सेट्रा, ठीक है, इंक्रीज द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। वेक्टर ऑफ मलेरिया क्या है, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है, सबको पता है फीमेल एनोफिलीज की वजह से क्या होता है, हम लोगों को मलेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, वेक्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी है और वेक्टर और डायरेक्ट दो तरीके से होता है। वेक्टर वाला जो होगा वो क्या होगा, बाय द बाइट ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वाले में क्या होगा, और कॉन्जेनाइटल भी है, सॉरी नहीं, हाँ कॉन्जेनाइटल मलेरिया भी होता है। पहले डायरेक्ट देख लो, इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से हो गया, ठीक है, और इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो गया। कॉन्जेनाइटल मलेरिया फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर की वजह से बच्चे में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 12 दिनों का होता है, 9 से 14 दिनों का, जो पहले एफ मलेरिया इनकी फैलिस्पैरम मलेरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है 14 दिनों का जो होता है वो होता है 8 से 7 दिनों तक का, ठीक है, बाइवेक्स मलेरिया की वजह से। नेक्स्ट है 17 दिनों का जो होता है वो होता है 16 से 18 दिनों का, ठीक है, ओवेरियन मलेरिया की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 से 40 दिनों का, जो 28 दिनों तक रहता है मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्लिनिकल फीचर दे रखा है, प्राइमरी फीचर इज पैरा ऑक्सीमल फीवर, ठीक है। द पीक ऑफ फीवर coincide with the release of mesocyte with the blood and stream. The टिपिकल अटैक कंप्रोमाइजेस 3 स्टेज, दे आर एज फॉलोज। कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, द ऑनसेट विद द लेस्टिट्यूड, हेडेक, नोजिया एंड चिली सेंसेशन फॉलोड बाय रिगर्स। द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, जो कितना होता है 39 से 41 डिग्री सेल्सियस होता है। इनिशियली द पेशेंट फील कोल्ड, ठंड लगने लगती है। द पल्स रेट इज रैपिड और दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 4 आवर्स, ठीक है, ऐसा 1 से 4 घंटे तक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद सही हो जाता है। हॉट स्टेज में क्या होगा, हॉट में द पेशेंट फील्स बर्निंग हॉट, बहुत जलन पड़ेगी, ठीक है, जलन पड़ेगी। द हॉट स्किन बिकम्स हॉट एंड ड्राई टू टच, ठीक है, गर्म हो जाएगी और ड्राई होगी, मतलब रुक्ष होगी छूने में, ठीक है। हेडेक इज इंटेंस बट नोजिया इज डिमिनिश, मतलब हेडेक बहुत तेज होगा पर जो नोजिया है वो कम होगा, ठीक है। पल्स एंड रेस्पिरेशन रैपिड होगा। द स्टेज लास्ट फॉर 2 से 6 आवर्स तक देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो स्वेटिंग क्या होगी, स्वेटिंग स्टेज होगी। फीवर कम्स डाउन विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, द स्किन कॉल्ड एंड मॉइस्ट, द पल्स रेट बिकम्स स्लोअर, कम धीरे हो जाएगी। पेशेंट फील्स रिलीव्ड एंड ऑफ्टन फॉल अस्लीप। द स्टेज फॉर दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 से 4 घंटे तक ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, द क्लासिकल 3 स्टेज में नॉट ऑल्सो बी ऑब्जर्व ड्यू टू द मैच्योरेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ पैरासाइट of the disease have the tendency to relapse and characterized by classical fever is different according to species. The example, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Fever again after 48 hours. Plasmodium malaria fever again after 72 hours, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम falciparum malaria are cerebral malaria, acute renal failure, liver damage, gastrointestinal system dehydration, collapse, anemia, black water, fever, etc. The complication of other malaria is milder, example that is anemia, hepatosplenomegaly, herpes, renal complication, etc. ठीक है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स करने चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं, डिटेक्शन लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करोगे, ब्लड का डिटेक्शन कराओगे। थिन फिल्म होगा, यूजिंग ऑफ सर्चिंग ऑफ पैरासाइट की थिन कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। फिर क्या होगा, थिक फिल्म में सर्चिंग ऑफ पैरासाइट, थिन फिल्म में क्या होगा, यूज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। मलेरिया फ्लुक्वेसन एंटीबॉडी टेस्ट होगा, ठीक है। डिप स्टिक ऐसे होगा। मेजरमेंट क्या है मलेरिया का, तो इन प्री एरेडिकेशन एरा है, ठीक है। व्हेन मलेरिया वाज डायग्नोसिस क्लिनिकली, स्प्लीन रेट है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 2 से 10 साल के बच्चों में शोइंग एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, तब भी एनलार्जमेंट दिखता है कब, जब मलेरिया होता है बच्चों को। एवरेज एनलार्ज स्प्लीन किस में होगा, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलता है, शोइंग मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड, जब ब्लड में होगा पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, इन्फेंट पैरासाइट में देखने के लिए मिला, परसेंट ऑफ इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, द मलेरिया parasite in the blood
नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे क्या बताया, मलेरिया पैरासाइट एंड ब्लड फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो होगा पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स है, एवरेज डिग्री है पैरासाइटेमिया की इन सैंपल ऑफ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इरेडिएशन एरिया है, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम डायग्नोसिस वाज डायग्नोस्ड माइक्रोस्कोपिकली आप कम कर लेते हैं, एपीआई करते हैं, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस यानी कि कंफर्ट केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर अपॉन पॉपुलेशन अंडर सर्विलियंस टू 1000 कर देते हैं, ठीक है। तब हमें पता चल जाता है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट की बात करें तो ABER है, ठीक है। ABER करेंगे, नंबर ऑफ स्लाइड एग्जामिन, कितनी स्लाइड एग्जामिन की गई हैं अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100 कर देंगे। एनुअल फैल्सिपिलम इंसिडेंस में क्या करेंगे, केसेस ऑफ फैल्सिपिलम मलेरिया, ठीक है, इन अ गिवन ईयर। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया में क्या करोगे कि देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मलेरिया कंट्रोल। पहले तो हमें हमारी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। जो पानी वगैरह होते हैं जब होता है मलेरिया तो ये बताते हैं कि पानी भर के ना रखें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। केस डिटेक्शन क्या हो गया, ऑल द केसेज ऑफ फीवर एट PHC और हॉस्पिटल शुड बी फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ फॉर मलेरिया एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीशंस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इन हाई रिस्क में क्या करते हैं, टैबलेट क्लोरोक्विनोन देते हैं, ठीक है, और टैबलेट प्रीमिक्यूनेन देते हैं। टैबलेट पहले दिन, ठीक है। टैबलेट क्लोरोक्विनोन कितनी होती है, 100 to 10 mg पर kg देंगे और 600 mg फॉर एडल्ट है, ठीक है। प्रीमिक्यूनेन कितनी दोगे पहले दिन, 0.75 mg पर kg या 45 mg फॉर एडल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दोगे, डे 2 में क्लोरोक्विनोन दोगे, ठीक है, और डे 3 में भी यही दोगे, पर मात्रा चेंज हो जाएगी। पहले दिन में जितनी दोगे उतनी दूसरे दिन भी दोगे, और जितनी दूसरे दिन दोगे उससे आधी, मतलब 300 mg पर एडल्ट आप कब दोगे, तीसरे दिन दोगे, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है इसमें, रेडिकल ट्रीटमेंट क्या करोगे आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ स्पीशी। अगर हमें स्पीशी पता चल गई तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो हम क्या देंगे, प्रीमाक्यूनेन देंगे। अब क्लोरोक्विनोन नहीं देंगे, अगर वाइवेक्स है तो हम इसमें क्या दोगे आप, प्रीमाक्यूनेन देंगे टैबलेट, ठीक है। कितने, 15 mg एडल्ट में दोगे, ठीक है। 15 दिनों तक चलाओगे फैल्सिफेरम में, नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का क्या है, इन क्लोरोक्विनोन रेसिपिएंट प्लाज्मोडियम पहला स्पैरम केसेस में क्या करोगे, सिंगल डोज दोगे 2.25 mg पर kg की, ठीक है, सल्फेट डॉक्सिन के साथ, और उसमें क्या और क्या दोगे, 1.25 mg पर kg क्या दोगे, प्रीमियमेथामाइन, ठीक है, और सिंगल डोज इसी के साथ प्रीमाक्यूनोन की दोगे, तीनों दोगे, सल्फेट डॉक्सिन, ठीक है, पायरीमिथामाइन, ठीक है, और प्रीमाक्यूनेन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, लो रिस्क में आप क्या दोगे, क्लोरोक्विनोन दोगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी क्लोरोक्विनोन और प्रीमाक्यूनोन की सिंगल डोज दोगे, ठीक है, पूरे 5 दिनों तक, ठीक है। फैल्सिफेरम में क्लोरोक्विनोन प्रीमाक्यूनोन, ठीक है, सिंगल डोज दोगे, ठीक है, दोनों की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में क्या करोगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, 1 ग्राम ऑफ क्यूनोन इंजेक्शन देंगे, IV देंगे, ड्रिप ऑफ 5% ऑफ डेक्सट्रोज सलाइन इन 4 आवर्स 8 आवरली एंड स्विच ओवर टू ओरल डोज करोगे एज अर्ली एज पॉसिबल एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी 7 days, ठीक है। उसके बाद अदर चॉइसेस, इसके अलावा भी चॉइसेस हो सकती हैं, अगर ये नहीं मिल रही है तो उसके अलावा क्या कैसी चॉइसेस हैं, आर्थेमेरिसाइन है, आर्थेमेटर है, ठीक है, आर्टेस्यूनेट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मास ड्रग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो देखो इन हाईली एंडेमिक एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली होती है तो मास ऑफ क्लोरोफेक्सिन इज यूज, क्लोरोफ्लोफाइलेक्सिस इज यूज करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, क्लोरोक्विनोन देंगे 300 mg पर mg, ठीक है, 100 mg बेस के साथ, ठीक है, तो 1 a वीक और 6 days पर वीक, एक बार दोगे पर 6 हफ्तों तक दोगे, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन भी दोगे जो 100 mg वंस पूरे दिन में एक बार दोगे, ठीक है। एक्टिव इंटरवेंशन मेजर्स क्या करोगे, तो स्ट्रेटिफाइड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, इन इंडिया एंडेमिक एरिया ऑफ मलेरिया इज स्ट्रेटिफाइड इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में क्या होगा, एरिया स्ट्रेटिफाइड होगा, ठीक है। एन एंटी एडल्ट मेजर क्या है, सॉरी, एन एरिया विद API लेस देन 2 एंड एरिया विद API मोर देन 2,
ठीक है। वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजीज करोगे, एंटी एडल्ट मेजर करोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्प्रेइंग ऑफ द इंडोर सरफेस ऑफ हाउस विद द रेसिडुअल इंसेक्टिसाइड DDT, मेल्थोनियन एक्सेट्रा। उसके बाद एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड्स की इन द फॉर्म ऑफ फॉग ऑफ मिस्ट यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात है इंडिविजुअल प्रोटेक्शन बाय यूजिंग repellent, protective clothing, nest coils etc. Anti-larva measure करेंगे, oiling the collection of standing water, dusting of collected water with Paris green, use of modern larvicides, tempers जिसे हम कहते हैं, reduction of source of mosquito by filling the pits management, ठीक है। water level, changing the salt content of the water etc. next है lymphatic filariasis। lymphatic filariasis की तो distribution of disease क्या है, endemic है, tropic और subtropic of Africa, Asia and some parts of America. use the disease is endemic in यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात में ये एंडेमिक है, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट क्या है, there are 8 species of filiar parasite but only 3 of them causes lymphatic filariasis. Other are responsible for non lymphatic filariasis which is not found in India. Wucheria brancor क्रॉफ्टी, ब्रूगी मलेरियाई, ठीक है, ब्रूगिया टिमोरियाई, नेमाटोडा वॉर्म है, ठीक है। ये सब, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ साइकिल ये इसकी ऐसी है, द एडल्ट वुमेन फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन डिफेक्टिव होस्ट है, वेयर दे गिव बर्थ टू मैनी एज 50,000 से भी ज़्यादा को ये बर्थ दे देती हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, माइक्रोफिलेरिया MF पर डे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो द मॉस्किटो पिक्ड अप द MF ड्यूरिंग, मॉस्किटो क्या करता है, पिकअप करता है इसको MF को, ठीक है, ड्यूरिंग फीडिंग में। तो इससे मॉस्किटो MF गॉट डेवलप्ड इन इन्फेक्टिव लार्वे में ये बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो रिजर्वायर क्या है इन्फेक्शन का, बुकेरिया मैन में है, ब्रूगेरिया मैन एंड एनिमल दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो होस्ट फैक्टर क्या है, मैन इज़ अ नेचुरल होस्ट है, एज क्या है, ऑल एज ग्रुप्स में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम तो आपका और क्या, सेक्स की बात करें इन बोथ द बट हायर इन मेल्स, ठीक है। माइग्रेशन डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंडेमिक टू नॉन एंडेमिक एरिया, ठीक है, फैल जाता है जैसे कि कोरोना फैला है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इट में डेवलप ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। सोशल फैक्टर क्या है, एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, लिटरेसी, पॉवर्टी एंड पुअर सैनिटाइजेशन। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, टेम्परेचर बिटवीन, क्लाइमेट का टेम्परेचर बिटवीन 22 to 39 डिग्री सेल्सियस हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, 70% इज फेवरेबल फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग, 70% मॉस्किटो ब्रीडिंग की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, ड्रेनेज की बात करें, इन बैड ड्रेनेज एंड पॉल्यूटेड वाटर वेक्टर्स ब्रीड प्रोफ्यूसली, ठीक है। और उसके बाद टाउन प्लानिंग में भी होता है, इनएडिक्वेट टाउन प्लानिंग जिनकी होगी उसमें भी होगा, एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम, ठीक है। द ब्रीडिंग प्लेस आर सी पूल्स, ठीक है, सेप्टिक टैंक्स वगैरह हैं, ठीक है। बोरो पिट्स हो गई, ओपन डिचेज हो गई, वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स है इसका, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जिसे हम बुशेरिया कह रहे हैं, ठीक है। फीमेल मेंसोमिनिया मॉस्किटो बुल्गेरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ इन्फेक्टिव वेक्टर, इंक्यूबेशन पीरियड है 8 से 16 महीने तक, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो क्लिनिकल फीचर है, 4 स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो 4 स्टेजेस, एसिम्टोमेटिक एम माइक्रोफिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके फिल्म एमेरिया, ठीक है, देयर इज नो MF इन ब्लड, कोई MF नहीं होता है इसमें ब्लड में। एसिम्टोमेटिक माइक्रो फिल्मेरिया, देयर इज अ कैरियर ऑफ MF इन ब्लड बट डू नॉट शो क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। स्टेज ऑफ एक्यूट मैनिफिकेशन क्या है, इन फर्स्ट मंथ एंड ईयर देयर इज फीवर होगा, लिम्फेटाइटिस होगा, लिम्फेटिडाइनेटाइटिस होगा, लिम्फेडो एंड ऑडेमा होगा, ठीक है, ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड एपिडोडिडाइमोसिस इन मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लेशन में क्या होगा,
डेवलप आफ्टर जो ये होता है, ये डेवलप कब होता है? डेवलप आफ्टर 1 to 15 ईयर, 1 से 15 साल में डेवलप होता है। देयर इज अ फिब्रोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कॉजिंग परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। द फीचर्स आर हाइड्रोसील, ठीक है। और क्या होगा? एलिफेंटाइटिस, ठीक है। और काइलेम यूरिया, ठीक है, CHYLURIA, ठीक है, काइली यूरिया, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटाइटिस में अफेक्ट द लेग्स, स्क्रोटम, आर्म्स, पेनिस, वल्वा एंड द ब्रेस्ट, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में थिक ब्लड फिल्म देखने के लिए मिलेगी। ब्लड कलेक्टेड बिटवीन 8:32 PM टू एंड 12 midnight। MF प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कंसंट्रेशन होगी MFC ऑफ द ब्लड की, ठीक है। DEMC प्रोवोकेशन होगा टेस्ट का। उसके बाद इंडक्शन होगा MF ब्लड ड्यूरिंग daytime by the administration DEC 100 mg orally। MF begin to reach their peak within 15 minutes to 2 hours, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करोगे? वेक्टर की कंट्रोल करोगे, मॉस्किटो कंट्रोल होगा उससे। लेप्रोस्कोपी जो कि हेमनेस डिजीज़ है। लेपर मतलब स्कैल्पी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज 1985 में हुआ था 122 कंट्रीज बट एंडेमिक फॉर लेप्रोसी, बट इन 2000 लेप्रोसी वॉज restricted to only 10 countries by using multi-drug treatment elimination of disease. Now the highest burden is concentrated in 6 countries, that is India, Brazil, Myanmar, Madagascar, Nepal, Mozambique. In India it is an endemic in Bihar, UP, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एक्सेट्रा। एजेंट फैक्टर इसका है माइकोबैक्टीरिया लेपेरे। एसिड फास्ट बेसिलाई है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ऑल पेशेंट ऑफ एक्टिव लेप्रेसी पोर्टल ऑफ द एग्जिस्ट, मेन पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट इज नजल मुकोसा। अदर आर अल्सरेटेड और ब्रोकन स्किन और समटाइम्स इन्फेंट स्किन इन्फेक्टिव, हाईली इन्फेक्शियस होस्ट फैक्टर इन ऑल द एजेस बट predominantly in infant and children sex, both sexes but higher in males due to greater mortality. Migrated from rural to the urban areas. Immunity, cell mediated immunity is responsible for resistance to the infection in some individual. Environmental factor की बात करें तो ह्यूमिडिटी पेवर करती है सर्वाइवल ऑफ एम लेप्रे, द पॉवर्टी एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल है ओवरक्राउडिंग, पुअर हाउसिंग, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ पेरोनियल हाइजीन एक्सेट्रा। सोशल फैक्टर्स है फेवर्स द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। देयर इज सोशल स्टिग्मा ऑफ द लेप्रेसी ड्यू टू द डिफॉर्मिटी इट कैन कॉज, सो इट इज कॉल्ड सोशल डिसीज, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टोटल इन्फेक्शन बाई स्नीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में स्किन टू स्किन है और इनडायरेक्ट में कॉन्टैक्ट विद सॉइल, फॉर्मेटाइट्स एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सम रेयर रूट्स आर ब्रेस्ट मिल्क फॉर द लेमेटस मदर टू बेबी बाय इंसेक्ट वेक्टर और बाय टेट्रिलिंग निडल्स। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 5 साल के लिए और मोर। द ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड कंपेयर टू द लेपरामेटस लेप्रोसी। क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट ट्यूबरकुलर बॉर्डर और ये इंडियन की है, ठीक है। लेप्रामेटस और प्योर न्यूकैरेटिक, जबकि राइडली एंड जॉपलिंग में है टीटी यानी कि ट्यूबरकुलॉइड बॉर्डर लाइन बीटी देखने के लिए मिलता है, बॉर्डर लाइन बीबी बॉर्डर लाइन लेब्रोमेक्स लेप्रामेटस। रिस्कली एंड जॉपलिंग में मैड्रिड में क्या है? इंटरमीडिएट है, ट्यूबरकुलॉइड है, बॉर्डर लाइन लेप्रामेटस है। WHO में पॉक्यूलेट बेसिलस है, मल्टी बेसिलरी है, ठीक है। इंटरमीडिएट में है अर्ली केसेस विद 1 or 2 वैग्यू, हाइपोपिगमेंटेशन, मक्यूल्स एंड डेफिनेटली सेंसिटिविटी इम्पेयरमेंट। द लेशंस आर बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस टाइप है द केस विद 1 or 2 more well defined lesions which may be flat or raised, hypopigmented or erythematous and are aesthetic. The lesions are bacteriological negative. Borderline type क्या है? In case with 4 or more lesions with may be flat or raised, well or ill defined, hypopigmented or erythematous and show sensory impairment of the loss. The bacteriological positivity of these lesions is variable. Without treatment it usually डिस्ट्रीब्यूट लेशन, द लेशंस आर बैक्टीरियोलॉजिकल पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? प्योर न्यूरोटिक टाइप क्या है? द कॉज ऑफ लेप्रोसी विच शो नर्व इन्वॉल्वमेंट बट नॉट हैव एनी लेशंस इन द स्किन, दिस कॉज द बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिविटी। पॉलीबैसिलस है, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी है, ठीक है। 1 to 5 स्किन लेशंस पॉकी बैसिलरी में देखने के लिए मिलता है, मल्टी बैसिलरी में मोर देन 5 स्किन लेशंस देखने के लिए मिलता है। क्लिनिकल फीचर है लेप्रोसी इज क्लिनिकली characterized by the 1 or more of the following cardinal features है। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस देखने के लिए मिलते हैं, पार्शियल और
Total loss of cutaneous sensation is affected area, presence of thickened nerve, presence of acid bacilli in the skin or nasal smear. The sign of advanced disease are presence of nodule or lump, especially in the skin of the face and ear, plantar ulcer, loss of finger or toes, nasal depression, foot drop, claw, toes, etc. Diagnosis में family history, clinical examination, thickening of the nerve, hyperpigmentic patches and loss of sensation. Bacteriological examination में presence of M. laperi in the skin of nasal mucosa membrane or nasal bellow and zilharus nasal staining of the acid fast bacilli, mouse foot pad, culture of M. leprosy, histamine टेस्ट कराते हैं. ठीक है, इसमें क्या करोगे, आईडी इंजेक्शन दोगे ऑफ in 0.1 ml solution of histamine in hyperpigmented patches. In healthy people, it gives rise to a wheal surrounded by erytheromatous flare within few minutes. In the case of leprosy, flare response is lost because of nerve supply is damaged in that area. Biopsy for confirmation and the classification of the disease. Immunological test होगा, test for detection of the cell mediated immunity, CMI. लेप्रोनिन टेस्ट होगा. अर्ली रिएक्शन, लेट रिएक्शन. अर्ली रिएक्शन को फर्नाज रिएक्शन कहते हैं, जबकि लेट रिएक्शन को मित्सुडा रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, लेप्रोनिन टेस्ट में क्या होगा, परफॉर्म करता है इंजेक्टिंग आईडी इंजेक्शन ऑफ 0.1 ml ऑफ लेप्रोमिन into the inner aspect of forearm. There are two types of positive reaction होती हैं. early reaction से Fahrenheit's reaction and inflammatory response develop within 24 to 48 hours and disappear after the 4 days. This sign is redness and duration of sight for more than 10 mm. It shows the person is exposed to infection previously. late reaction में क्या है, Mistuda reaction है. The reaction starts 7 to 10 days and reaches its maximum in 3 to 4 weeks. The test is read at 21 day when nodule is maximum. If nodule is more than 5 mm, the reaction is positive and it indicates cell mediated immunity. Lepronin test is not a diagnostic test because it shows both the false test positive and the false negative result. It is used to evaluate the immune system status of leprosy patient to confirm the classification of cases and estimate the prognosis of the cases. Test for humoral response to M. leprae. अच्छा, इसके अलावा एक और टेस्ट रह गया LTT और LMIT. LTT में क्या है, लिम्फोसाइट ट्रांसमिशन टेस्ट है. LMIT ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इनिबिशन टेस्ट है. डिटेक्ट करता है सब क्लिनिकल कॉज ऑफ CMI ऑफ पेशेंट. ठीक है, टेस्ट फॉर ह्यूमन रेस्पॉन्स का लेपेरे का क्या करोगे, एक्सपेक्टेड टू हैव वैल्यू इन द डिटेक्टिंग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, प्री क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉलो अप द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट. FLA ABS टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ELISA. लेप्रोसी कंट्रोल मेडिकल मेजर्स होना चाहिए. एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय एपिडेमिक सर्वे, अर्ली केस डिटेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्वे, ग्रुप सर्वे, केस डिटेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्वे, ग्रुप सर्वे एंड द मास सर्वे. मल्टी ड्रग थेरेपी MTT होना चाहिए. WHO रिकमेंडेशन फॉर द एडल्ट आर फॉर मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी 12 महीने में रेफाम्पाइसिन दे सकते हैं, डोपासोन दे सकते हैं, क्लोफेजिमिन दे सकते हैं. रेफाम्पाइसिन 600 mg वंस मंथली देते हैं, गिव अंडर द सुपरविजन. डेप्सन 100 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड. क्लोरोजिमिन 300 mg वंस मंथली सुपरवाइज एंड 50 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड. पॉलीबैसिलरी लेप्रेसी 6 महीने में दोगे राइफापाइसिन और डेप्सोन. ठीक है, राइफापाइसिन वही 600 mg वंस मंथली गिवन अंडर सुपरविजन और डॉप्सोन 100 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्टर. सेम ऊपर वाले की तरह है. ठीक है, उसके बाद लेप्रा रिएक्शन क्या करेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेप्रेसी इम्यूनोलॉजिकल मेडिकेटिव एपिसोड ऑफ एक्यूट एंड सबएक्यूट इन्फ्लेमेशन नोन एज लेप्रा रिएक्शन में अगर ये होते ही होते हैं बिकॉज पेरिफेरल नर्व ट्रंक आर ऑफ्टन इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, लेस रिएक्शंस आर प्रोमाइटली एंड एडिक्वेटिवली ट्रीटेड करते हैं. ठीक है, यूजिंग टैपरिंग डोज ऑफ प्रीडिनिसोलोल for 10 weeks starting from 40 mg. Such episode can result in permanent deformity. Surveillance care after the completion of the treatment. Paucibacillary cases are examined at once a year of minimum 2 years and multibacillary cases once a year for minimum 5 years. Immunoprophylaxis होता है जिसमें BCG वैक्सीन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी. अदर आर अंडर इन्वेस्टिगेशन. क्रोमोफेरोक्सिमेट, डेपासन और एसिडापोसनोन
जो यूजफुल करती हैं एप्लीकेबली स्टिल टू बी डिटरमाइंड ट्रीटमेंट फॉर डिफॉर्मिटीज प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग। फेस में क्या होगा, मास्क, फेस फेसिस, लेना, लेगो, थैलेमस, लॉस ऑफ आईब्रोज, आईलैशेस, कोरोनियल अल्सर, ऑप्टाइज, परफोरेटेड नोज, डिप्रेस्ड नोज, ईयर डेफॉर्मिटी एक्सेट्रा। हैंड्स में क्या होगा, क्लॉ हैंड होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, अल्सर होगा, एब्जॉर्प्शन होगा डिजिट का, ठीक है, थंब वेब कंट्रोल होगा, हेलोइंग होगा, इंट्रोशियस स्पेस का, और स्वेलो हैंड एक्सेट्रा। फीट में क्या होगा, प्लेंटर अल्सर होगा, फुट ड्रॉप होगा, इन्वर्शन ऑफ फुट होगा, क्लाउनिंग ऑफ द टो होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द टो, कोलैप्स फुट होगा, स्वेलन फुट होगा, कैलोस। अदर क्या है, गायनेकोमेस्टिया होगा, परफोरेटेड पैलेट होगा, एक्सेट्रा होगा। रिहेबिलिटेशन क्या है, चीपेस्ट एंड द श्योरेस्ट मेथड इन द इज टू प्रिवेंट फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड द सोशल एंड वोकेशनल डिस्ट्रप्शन बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हेल्थ एजुकेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेप्लोसी कंट्रोल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट की बात करें, हेल्थ एजुकेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक डिजीज, रेगुलर ट्रीटमेंट एंड लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एट द रिस्क, एजुकेशन टू द फैमिली टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू द हेल्थी कॉन्टैक्ट स्पेशली चिल्ड्रन। सोशल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल असिस्टेंट टू द पेशेंट टू ट्रैवल टू द एंड फ्रॉम द क्लिनिक, हेल्प टू द नीडी फैमिलीज इन द फॉर्म ऑफ फूड, ग्रेन, क्लोथ, केयर ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ठीक है। नेशनल लेप्रोसी इरेक्टेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज़। तो रेबीज़ कैसे होता है, रेबीज़ जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ एन एंजोइक्टेड और एपिजोटिक डिजीज ऑफ वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस, सबको हो सकता है। सम कंट्रीज हैव अचीव्ड रेबीज फ्री स्टेटस ऑफ विगरस कैंपेजन ऑफ द एलिमिनेशन। वाटर इज मोस्ट अफेक्टेड नेचुरल बैरियर टू द रेबीज, मतलब इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, यूके एक्सेट्रा फ्री फ्रॉम डिजीज। इन इंडिया, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आर फ्री ऑफ दीज डिजीज, क्योंकि इनकी वैक्सीन आ गई है, पहले ही लगा दी जाती है। एजेंट क्या है, लाइसा वायरस होता है, टाइप 1 RNA वायरस है, न्यूरोटॉपिक वायरस है, हैविंग टेंडेंसी टू अफेक्ट CNS को करता है, न्यूरॉन जो ब्रेन में होते हैं, वायरल पार्टिकल सीन करता है इंक्लूजन बॉडी को, जिसमें जो कि क्या है, नेगरी बॉडीज है, विच इज पैथोजेनिक ऑफ rabies. The world virus present in the saliva of rabid animal is called street virus, file virus. This is highly pathogenic to both human and animal. It is capable of producing negri bodies in the neuron. The incubation period is about 20 days to 60 days in dogs. By successive passage to the brain of laboratory animal, the street virus is made to loss its pathologically to the human but not the laboratory animal. The incubation period of this virus becomes short and fixed in 5 to 6 days. The modified virus is called fixed virus and or seed virus, which is used in the preparation of vaccine. इनका वैक्सीन के लिए भी यूज़ किया जाता है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, द प्रिंसिपल रिजर्वायर ऑफ रेबीज इन द इंडिया, रैबिड, वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल एंड द रैबिड स्ट्रे डॉग ऑफ द अर्बन एंड द रूरल एरिया। डॉग इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। फॉक्सेस यूरोप, आर्कटिक एंड नॉर्थ अमेरिका। रैकॉन्स ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। सक्स वेस्टर्न कैनेडा, ठीक है। बैट्स का है, वैम्पायर बैट्स इन साउथ अमेरिका एंड इंसेक्टिव वायरस बैट्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इन्फेक्टेड मटेरियल क्या, हाईली इन्फेक्शियस मटेरियल है, सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल। अदर आर बॉडी फ्लूइड्स लाइक सीरम हो सकता है, यूरिन हो सकता है, ठीक है, मिल्क हो सकता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या है, द रैबिड एनिमल इज इन्फेक्शियस टू अदर ड्यूरिंग द लास्ट 35 days ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलनेस। 8 से 10 दिनों के लिए द रैबिड एनिमल रिमेन इन्फेक्शियस टिल इट डाइज। ह्यूमन cases are also infectious during the period of illness. Host factor क्या है, all warm blooded animal including human are susceptible for the disease. The mortality rate is 100%. Mode of transmission by lick or bite of rabid animal. Man to man transmission होता है. Saliva rare because in the hydrophobia they do not have the tendency to bite, but transmission is also through the corneal grafting. Incubation period होता है 3 हफ्तों से 3 महीनों तक, डिपेंड होता है साइट ऑफ बाइट पे, सिवियरिटी ऑफ बाइट पे, स्पीशीज ऑफ बाइटिंग एनिमल, रिचनेस ऑफ नर्व सप्लाई, अमाउंट ऑफ सलाइवा डिपॉजिटेड, protection through clothes, पार्शियल ट्रीटमेंट इफ टेकन एनी, ठीक है। पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस क्या है, रेबीज वायरस जो होता है रेप्लिकेट करता है मसल में, कनेक्टिव टिश्यूज में, नियर द साइट ऑफ इंक्यूबेशन, जहाँ पे काटा है, ठीक है। इट अटैच टू द नर्व एंडिंग एंड स्प्रेड करने, उसमें घुस जाएगा और फिर पूरी नर्व में फैल जाएगा। एंड पेरिफेरल नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स टू ब्रेन, फिर ये ब्रेन में पहुंच जाएगा, रिजल्टिंग एंथेसेफेलेंस फ्रॉम द ब्रेन, द वायरस पासिंग सेंट्रीफ्यूगली अलोंग द क्रेनियल नर्व एंड बीचिंग
salivary gland and cornea. It reaches to myocardial muscles, skeletal muscle, adrenal gland, skin etc. through the peripheral nerves. इनकी वजह से पूरे में फैल जाएगा. वायरस नर्व एंटर द सर्कुलेशन, देयरफॉर नो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. क्लिनिकल फीचर क्या है इसके कि क्लासिकली हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिलता है. रेबीज में डेवलप इन द स्टेज इन 80 to 90% ऑफ केसेज में देखने के लिए मिलता है. कितनी तरीके की स्टेजेस होती हैं इसकी? 3 तरीके की होती है. प्रोडर्मल स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और स्टेज ऑफ पैरालिसिस. प्रोडर्मल क्या होगा? केवल हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, इचिंग होगी, टैगलिंग होंगे, नंबरनेस, सैडनेस, जहाँ पे काटा है वहाँ पे. ये 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी. स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में CNS अफेक्ट होगा, जिसमें क्या होगा? सेंसरी और मोटर दोनों और सिंपैथिक सिस्टम तीनों अफेक्ट होंगे. जिसमें सेंसरी में हाई फीवर कंटिन्यू होगा, पेशेंट बिकम रेस्टलेस हो जाएगा, इरिटेबल होगा, नॉक्सियस होगा, नर्वस होगा, बिकम सेंसिटिव टू लाइट टच होगा, पेन होगा, कोल्ड एक्सेट्रा. देयरफॉर ही में इवन गेट कन्वर्शन ऑन ए स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलाई. मोटर सिस्टम कैन इंक्रीज टोन एंड द स्ट्रक्टिविटी ऑफ द मसल गिविंग एक्सल्टेशन ऑफ द डीप रिफ्लेक्सेस, जर्क, ट्यूमर्स ऑफ द टिक लाइक मूवमेंट. ठीक है. सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा? एक्सेसिव परसिपिरेशन, लैक्रिमाइजेशन, सलाइवेशन एंड द इंक्रीज बाई टेम्परेचर, पल्स एंड द रेस्पिरेशन इंक्रीज. ही डेवलप एरोफोबिया, इनकी फियर टू द एयर, एंड फोटोफोबिया फियर टू द लाइट. ठीक है. हाइड्रोफोबिया हो जाएगी फियर टू द वाटर. ठीक है. स्टेज ऑफ पैरालिसिस में क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ डिगुलेटेशन रिजल्टिंग इन डिफिकल्टी इन द पेन इन द स्वेलिंग द फूड एंड अटेम्प्ट टू स्वेलो गिवन राइज टू द चॉकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, सो द पेशेंट कैन नॉट टेक फूड एंड ड्रिंक. खा नहीं सकता एंड इवन ही इज थर्स्टी एंड हंग्री. हमेशा खा भी लेगा तो भी भूखा और प्यासा ही रहेगा. फाइनली इवन द साइट ऑफ द साउंड ऑफ द वाटर रिजल्ट इन द सीवियर पेनफुल स्पेन ऑफ द मसल ऑफ डिग्रेडेशन. दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द form is called hydrophobia, fear of water. Ultimately there is a change in the voice, frosty saliva, hypersalivation हो जाएगा, anorexia, looks, fear of death, respiratory paralysis जो होगा, cardiac arrest होगा, डेथ हो जाएगी. डेथ अकर्स विद इन 8 to अगर हाइड्रोफोबिया देखने के लिए मिल गया तो जो पेशेंट है उसकी डेथ होना पॉसिबल है 8 से 10 दिनों के अंदर. ठीक है. डायग्नोसिस में क्या होगा? मेजॉरिटी केस में तो डायग्नोसिस है क्लिनिकल मैनिफेस्ट है, एविडेंस ऑफ एनिमल बाइट का है तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, एंटीमॉर्टम है, पोस्टमार्टम है. एंटीमॉर्टम में क्या देखने के लिए मिलेगा? स्किन बायोप्सी करेंगे न्यूट्रल रीजन की फ्रॉम द हेयर लाइन ऑफ द नेक एंड द फ्लोरेंट एंटीबॉडी टेस्ट FAT टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ वायरल एंटीबॉडी एंटीजन. ठीक है. कोरोनियल इंप्रेशन, सलाइवा स्मेयर फॉर फैट. ठीक है. पोस्टमार्टम में बायोप्सी करेंगे, ब्रेन की प्रेजेंस ऑफ नेगरी बॉडी देखने के लिए हमें मिलेगी एंड फैट की करेंगे. ठीक है. FAT वही फ्लूर फैट, यहाँ वो वाला नहीं है, फैट है फ्लूरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट का. ठीक है. मैनेजमेंट कैसे करोगे हाइड्रोफोबिया केसेस का? तो एडमिशन इज क्वाइट एंड डार्क रूम. ठीक है. सेडेक्टिव, एंटीपायरेटिक्स, एनालिसिस, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी कन्वल्शंस. ठीक है. 4 रिहाइड्रेशन देंगे, IV रिहाइड्रेशन देंगे, सॉरी. ठीक है. स्टेरॉइड दोगे, अस्माटिक डायरेटिक्स दोगे, एक्सपर्ट नर्सिंग केयर दोगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे. ठीक है. उसके बाद मेडिकल अटेंडेंट शुड बी आइडियली रिसीव प्री एक्सपोजर वाटर, ग्लासेस, मास्क, ग्लव्स, शूज एंड प्लास्टिक एप्रन. दे शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा, यूरिन एंड द टिगर ऑफ द पेशेंट. ठीक है. फिर फैमिली attendant should be receive pre-exposure prophylaxis, immunization and avoid contact with the infectious material. Concurrent disinfection of the patient clothes, bed sheet, utensil etc. After that, dead body should be soaked in the antiseptic before disposal. Best disposal for the burning and terminal disinfection of the room should be done. Next की अगर हम बात करें तो क्या है? prevention of rabies in men. Post exposure treatment of prophylaxis bound should be gently washed for 10 मिनट तक करना चाहिए from running at tap under detergent soap the viralized and agents like 70% alcohol providing iodine, Savlon, Dettol etc. should be used. इनसे करना चाहिए. severe lacerated injury should not be such as till 2 to 3 days. The dressing and the bandaging should be avoiding. Immunization agent, tetanus and the prophylactic antibiotics should be avoided. इन्हें नहीं देना चाहिए. ठीक है. The bitten animal should be observed for 10 दिनों तक. bitten animal को भी देखो. In occurrence of any sign of rabies, the animal should be killed and complete immunization against rabies should be done. The contact are of 3 types. Category 1, 2 and 3. touching or feeding of animal. Contact 1 है lick of the intact skin. ठीक है. Contact 2 है कि nibbling of the uncovered skin, legs are unbroken and the minor scratches or abrasion without bleeding. Category 3 है single or multiple transdermal bites, so scratches or contaminated legs of mucous membrane with saliva. ठीक है. Category 1 does not require any vaccine. Category 2 requires 1 ml human deltoid cell vaccine Rabipur at 0, 3, 7, 40, 30 and 90 optimal. I am in deltoid. Category 3
requires additional installation of 20 IU per kg body weight of human rabies immunoglobulin at 0 day intradermal in the wound and around the wound. Next step, pre-exposure immunization में क्या करोगे? It should be given at the risk group, veterinization, animal handlers who employs forest staff, slaughterhouse, ठीक है, वर्कर्स, म्यूनिसिपल जो म्यूनिसपैलिटी में काम करते हैं, लेबोरेटरी पर्सनल वर्कर्स और रेबीज वायरस एक्सेट्रा. ओनली 3 प्राइमरी डोजेज आर गिवन at 0, 7 and 28 days followed by first booster dose after 1 year and next booster dose after every 3 years. हर 3 साल के बाद रेबीज़ की भी डोज लगती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की क्या है आपका टेटनेस का. अब ये हम आगे बात करेंगे. यहाँ के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है.